I'm sure you must have all heard. The earlier you start investing, the better. But rent का जुगाड़ और overpriced coffee पीने के बाद, is it even possible to save your money in your 20s? Well, on today's episode on the Y-axis, let's find out that how saving money at an early age can be a game changer. And most importantly, how do you do it? Talk about inflation, savers are losers. If you are just saving money and not investing it, you are considered as a loser. I would suggest at least try to save 10 to 15% of your income. A credit card is like clay. You either make a god out of it or a devil out of it. ठीक है? I've seen you saying you would never invest in crypto. जैसे क्या होता है गूगल को बोलते हैं गूगल इज अ माउंटेन. You can climb it but you cannot move it. इंडिया में 2 लाख करोड़ की डेट है अभी, and that is Right. all because of credit card. Indians को लगता है कि बैंक्स उनकी सुरक्षा करने के लिए हैं. But banks are actually there to punish you. Hello Ujjwal, we are super excited to have you here. देखो firstly तो because there's so much that you have to offer in the world of personal finance, but उससे भी ज़्यादा I'm gonna take it as like a personal crash course because to put things into perspective, I'm 21. I've just started earning and there's a little bit of amount that I can potentially save out of whatever the modest earning I have at the moment. And I think a lot of people like me are going through this crisis ki how to maintain a balance between having a happening social life while also keeping your investments in check. So my first question to you would be definitely that what was the phase like for you when you were in your early 20s, and also what are the habits that एक इंसान को incorporate करनी चाहिए so that you know they can have like a steady run. Okay. So when you're in your 20s, don't worry about investing. Okay. Because I still believe that you have plenty of time to get your retirement fund. So what one should try to do in their 20s is try to make it a habit of saving money, because unless you save, you won't be able to invest, right? And if you talk about inflation, savers are losers. If you are just saving money and not investing it, you are considered as a loser. So in your 20s, let's make it a habit of to save money. Now, how can you save money? You need to budget. अब इसमें भी दो चीज़ें होती है. For example, if I take your example, you live outside, you're not at your home. You have to pay your rents, utility bills, you have to pay for food, transportation, and a lot of things. But अगर आप घर पे होते, अपने होम टाउन में होते, तो lot of things would have been avoided. कि ठीक है, घर पे पैसे नहीं देने रेंट के, खाना भी मम्मा बना के दे रहा है, मम्मी बना के दे रही है, and all those things. So it depends, and it would depend from individual to individual. Now, if you're living outside, I would suggest at least try to save 10 to 15% of your income. That's not a tough ask. Okay, anybody can do it. Even if you're earning around 60,000, I think you should save 6,000 to 9,000 rupees. अगर आप वो भी नहीं बचा पा रहे हो तो फिर there's a problem. Because once you have made that a habit of saving that money, then आपको आपके 30s में फिर दिक्कत नहीं होगी. तो budgeting is very important at that age. But mindset यही होता है ना यार कि 6,000 बचाकर क्या ही हो जाएगा. Exactly. You'd rather spend it on something else which will give you happiness today. Yeah. So what people don't understand is 5,000 rupees invested every month for 20 years with a step up of 10% every year can give you a corpus of 1 crore rupees. Damn. Right. तो start small. वो ऐसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है. That is how it actually works. So why people don't realize it, because they haven't seen it. 20 years उनकी एज होती है और उनको 20 साल अभी और चाहिए इतना कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए. मे बी वंस दे सेटल एंड दे स्टार्ट अर्निंग बिग अमाउंट ऑफ मनी, दे कैन टेक आउट अ बिग चंक एंड दे कैन इन्वेस्ट. बट एज आई सेड कि पहले स्टार्ट में हम बजटिंग करना सीखेंगे, सेव करना सीखेंगे, और हम उसी जो अमाउंट सेव करेंगे उसको हम इन्वेस्ट भी करेंगे इनटू डिफरेंट एरियाज. वील डाइवर्सिफाई सो दैट वी हम हमारी रिस्क को भी स्प्रेड कर देंगे एंड वील स्टार्ट टू गेन द कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर कि येस यू आर मेकिंग रिटर्न्स एंड मूविंग अहेड. I want to actually dive deep into Gen Z का spending tendency कैसा है in general, because I've heard this term a lot of times, which is post pandemic revenge spending. Yes. So I think which is कि people are off the leash now and they just want to just spend and splurge. So I feel I think Gen Z and millennials are the worst affected. Do you see those traits? Do you see that they are actually not thinking much about tomorrow? It's hard to say that because I was in the
I won't call myself falling into that category because see what happens. पहले क्या हुआ करता था कि जब अगर मैं मेरे मम्मी पापा की या दादा दादी की एज की बात करूँ, there were not a lot of distractions. अभी मैं if I pick up my phone and if I see let's say a dress or a watch or maybe a car, तो मुझे लगता है कि यार ये मुझे भी चाहिए, ये कार में मॉडिफिकेशन मुझे भी करवाना है, या ये मूवी मुझे भी देखना है. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेडपूल एंड वुल्वरीन. तो भले मेरा इंटरेस्ट नहीं है मार्वल में, बट जस्ट बिकॉज आई मतलब सोसाइटी विल एक्सेप्ट मी वाली चीज़ करने के लिए आई हैव टू गो एंड वॉच इट. तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है, राइट. बिकॉज अगर मैंने डेडपूल और वुल्वरीन नहीं देखी एंड इफ आई सिट विद माय 5 फ्रेंड्स एंड इफ वन ऑफ देम पॉइंट्स आउट कि क्या यार तूने मूवी नहीं देखी, तो मेरे वहाँ पे कचरे हो जाएंगे. And just because of that, to avoid that, I have to spend 300 rupees on that, and maybe if I take my girlfriend, I have to spend on popcorn as well. So it's money wasted only. So I would try to rather say here is कि आप जो करना चाहते हो आप वही करो. Don't be too distracted with stuff. मतलब self control होना बहुत ज़्यादा important है, which will obviously give you good results in your long term. So there's a lot of FOMO involved in the way you Exactly, yeah, I was not coming to that word. FOMO बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि हम इंडिया ना यूएसए की ट्रैजेक्टरी को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं. लोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं अभी हमको. आई टेल यू, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही जस्ट अर्न्स अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ, बट ही गेव अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़. उसने 11 लाख रुपये की कार ले लिया है. 10 lakh का लोन एंड ही इज पेइंग इन ईएमआई ऑफ 23,000 रुपीज़. तो ही सेज कि 40,000 रुपीज़ में से 23,000 आई कैन स्पेंड ऑन माई ईएमआई, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. Right, just because of the FOMO thing, and at this point of age, imagine if he would have been investing 20,000 rupees at least in SIPs, he would have collected a good amount of money to the same amount of years. In fact, I saw in one of your reels only that India में 2 लाख करोड़ की debt है अभी, and that is Right. all because of credit cards and EMIs. Yes. Do you want to elaborate on that कि क्या है, because we are spending way more than we can actually afford. So इंडियंस को लगता है कि बैंक्स उनकी सुरक्षा करने के लिए हैं, उनके पैसों को बचाने के लिए. बट बैंक्स आर एक्चुअली देयर टू पनिश यू, एंड दैट इज व्हाई दे आर इशूइंग यू क्रेडिट कार्ड्स. आप क्रेडिट कार्ड्स लो, आप डिफ़ॉल्ट करो, हम आएंगे 3.5% महीने की पेनल्टी लगाने आपके ऊपर, इंटरेस्ट लगाने. नहीं तो देयर, इसलिए आपको भी स्पैम कॉल्स आते होंगे क्रेडिट कार्ड्स को लेके. आपकी सैलरी भले आज 20,000 है, लेकिन आपको 50,000 की क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड ईजिली अवेलेबल है. सो आई थिंक दिस समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम इटसेल्फ, बिकॉज सी बैंक्स को तो कमाना है, राइट. दे नो दैट जेन ज़ीज व्हेन दे ओवरस्पेंड दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट. दे डोंट अंडरस्टैंड क्या होता है कि जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, देयर आर 2 वैल्यूज. द फर्स्ट इज मिनिमम अमाउंट एंड द अदर वन इज टोटल अमाउंट ड्यू. तो लोगों को लगता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके बच जाएंगे, वी डोंट नीड टू पे द टोटल अमाउंट. बट जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है. पीपल डोंट रियलाइज दैट. जब वो रियलाइज़ करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है. दे हैव टू गो एंड पे इट. अब ये गलती कैसे हुई? यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी, नहीं था, आपको नहीं पता था, या फिर आपने अपने हद से ज़्यादा स्पेंड कर दिया, तो यू आर इन दैट लूप. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. नाउ बैंक्स वोंट टेक अ स्टेप बैक बिकॉज दे आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स. तो इट्स द कंज्यूमर हु हैज़ टू कंट्रोल एंड नो देयर लिमिट्स एंड वेयर दे स्टैंड. What do you think is a good ratio in terms of अगर मैं 40,000 कमा रही हूँ तो मैं कितना क्रेडिट कार्ड अपना रखूँ बैलेंस? सो क्रेडिट कार्ड बैलेंस जो भी हो आपका, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कीप इट अंडर 30% यूटिलाइजेशन. आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आप 30,000 से ज़्यादा स्पेंड ना करो. आप अभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के ना बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं. तो क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक क्ले, यू आइदर मेक अ गॉड आउट ऑफ इट और अ डेविल आउट ऑफ इट. ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से यूज़ कर रहे हो, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ सिर्फ फॉर माई पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो उसमें मुझे कैशबैक 6.5% का मिलता है. तो वाई शुड आई पे फॉर माई पेट्रोल फ्रॉम UPI और कैश जब मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. तो सो इफ़ यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड वेरी वाइजली, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर यू. तो अगर आप 40,000 की आपकी इनकम है, आप 10,000 सेव करके 30,000 एक्सपेंस करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 30,000 एक्सपेंस पूरा क्रेडिट कार्ड से कीजिए. बट बी अवेयर कि आप यू आर नॉट यूटिलाइजिंग मोर देन 30% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट, प्लस यू आर पेइंग योर बिल्स ऑन टाइम एज वेल. These rewards are something that you should really spend time on mining. तो मैंने सुना है कि millennials जो हैं, Gen Zs भी, इनफैक्ट वो अपना कभी कभार in such scenarios वो 30% of their salary it goes into food, eating out. Right.
And I think that's a very weird statistics because I can't personally resonate with that. लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उसको कैसे कर्ब करें? फर्स्टली वो नीड को टू ऑलवेज जस्ट गो आउट एंड ईट, एंड ऑल्सो सेकेंडली कि अगर आप जा भी रहे हो, इफ यू वांट लाइक वंस इन अ वाइल, हाउ डू यू मैक्सिमाइज दैट? सी नीड को तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा. आप उस पर रोक नहीं लगा सकते. बट आई टेल यू, अगर आप एक कुछ 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा रहे हो बाहर, आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आप उसे घर में बना लोगे तो आपको शायद 100-120 रुपीज़ का ही पड़ेगा. तो यू आर सेविंग अराउंड 80% ऑफ योर मनी देयर. बट अगेन पीपल फैंसी गोइंग टू बिग रेस्टोरेंट्स, गेटिंग क्लिक्ड, वही सोसाइटी का प्रेशर एंड फोमो एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बेटर ट्राई कि हफ्ते में एक ही दिन हम बाहर खाएं. और अगर नहीं कर सकते तो देर आर अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. लाइक मैं एक यूज़ करता हूँ, इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ईजी डाइनर, which really helps in saving around $1,000 to 50% of the total bill amount, which is a huge thing. तो मतलब मैं I'll give you an example. मैं Lord of the Drinks गया था in Mumbai and the bill was around 4,400 rupees, but because of that credit card I only paid 2,100 rupees. It was I saved a lot of money over there. So yeah, if you're eating a lot, get yourself that credit card. They say money saved is money earned. So Yeah, right. same strategy goes. Now I want to actually dissect कि बहुत सारे ऐसे options हैं, like you're saying कि save तो करना है पर उसे कहाँ लगाना है. तो SIPs होते हैं, health insurance. A lot of people say that this is the prime time where you should actually invest in your health as well. But ये तो हमारा I think last priority होता है. तो breakdown एक मिल जाता कि अगर कहाँ पे what are the other portfolios, how should you diverse it? So unless you're over 30, don't buy term insurance for yourself, because I guess आपके पास उतनी responsibilities नहीं है and your parent, your father might have it. तो आपको ज़रूरत नहीं है term insurance की, but yeah, you should get an health insurance for yourself. अगर आपके पापा ने आपको मतलब आपकी family floater plan में आप covered नहीं हो तो get a separate health insurance for yourself. That's a different thing. Health insurance हो गया, term insurance 30 के बाद लेना है. Let's talk about where to invest. So earlier मैंने बोला कि पहले आप हैबिट पे बनाओ कि आप सेव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. अगर आपको लगता है कि हाँ हम इतना चंक ऑफ मनी सेव कर लेते हैं इन अ पर्टिकुलर मंथ, देन लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग. सो फॉर बिगनर्स आई वुड सजेस्ट इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इफ़ यू सी हिस्टोरिकल रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स तो 12% तो आराम से मिल गया है. एंड लाइक आई सेड, अ स्टेप अप का मतलब होता है कि आपने एक साल फॉर एग्जांपल 5,000 की SIP करी एंड स्टेप अप टू 10% वुड बी 5,500 फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. फिर 10% और बढ़ा देना, फिर 10% और बढ़ा देना. तो लेट्स से एट द एज ऑफ 22 you're 21, right? I think you can start an SIP of 5,000 rupees. Can you? Sure. You can. Okay. You start an SIP of 5,000 from the age of 21, and when you turn 41, if you step up by 5 or 10% every year, by at the age of 41 you will have 1 crore rupees. If you start with 10,000 and step up by 10%, at 12% index fund में invest करने में you will get 2 crore rupees. That's the power of compounding. That's the power of compounding, yes. But see, the first 8 years will take time to double your money. Then the next doubling will come in 4 years, then 3 years, and then it will reduce like that. तो यही सेफ साइड है, because I have seen you saying कि you would never invest in crypto. Yeah. मतलब you would never invest in something that you're not Understand. sure about. But a lot of people are actually gravitating towards it. अभी तो इंडिया में the situation is a little volatile also. But in general, I think quick gains is something that people are looking for. Right. What's the mindset behind it? So मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. क्रिप्टो तो नहीं, बट मैंने FNO ट्राई किया था. I have lived around 2 to 3 lakh rupees, to be very honest, in FNO. Just because there was quick money into it. तो समझ में आता था मार्केट, चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब समझ में आते थे. बट FNO is FNO. You never know कि कब पूरी पिक्चर पलट जाती है. एंड इन दैट ओनली आई लॉस्ट मनी. आई ऑल्सो ट्राइड कमोडिटीज़ में मेरा पैसा चला गया. अभी उसके बाद आई फाउंड माई सेल्फ अ मेंटर जिसने मुझे पूरा सिखाया, एंड नाउ माई रिस्क मैनेजमेंट हैज़ चेंज्ड. तो माई सजेशन वुड बी कि until and unless you understand a particular asset thoroughly, don't put your money into it. Right. Fair enough. And you have to give time into it. You can't just Exactly. मतलब जैसे क्या होता है कि हम या तो खुद सीख के पहले कैपिटल ब्लो करके फिर आगे बढ़ें, तो we can consider that कि हमने एक फीस दे दी किसी को सिखाने की, और you first learn
you go to an institution, you find yourself an influencer or a mentor who can teach you. आप उनको पे करो, आप उनसे सीख के फिर आगे बढ़ो. Right. It's otherwise you have to spend some money Right. doing it. Fair enough. Also, I wanted to know कि job life is something that most of the people are looking at, but there are also people who want to build a business at this age. Right. So, are there any startup funds that people can use? देखो, आप बोल रहे हो कि कौन से फंड्स को हम टैप कर सकते हैं. तो माई सजेशन वुड बी कि फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, टैप योर ओन फंड्स फर्स्ट. Okay. वाई पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि यार सेव करके क्या मिलेगा, तो मेरे को मेरा आंसर है उनके लिए कि सेव करके ये मिलेगा कि अगर 5 साल बाद आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना रहा तो यू हैव लिक्विड कैश विथ यू टू यूज़ इट. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यू वर 18 एंड आपको नहीं पता था कि मैं 21 पे आके आई विल स्टार्ट अ पॉडकास्ट. राइट. अगर आपको पता होता तो आप सेव करना शुरू करते हैं, बट सिंस आपको नहीं पता था आपने नहीं किया. बट आपको पता हो या नहीं पता हो, यू शुड ऑलवेज सेव, बिकॉज कब हमें ज़्यादा पैसों की नीड पड़ जाए, वी डोंट अंडरस्टैंड. यू कैन यूज़ दैट मनी, अगर आपको बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, यू कैन यूज़ दैट मनी फॉर योर वेकेशन, क्योंकि हमेशा एक एक्स्ट्रा बफर होना वुड नेवर हर्ट एनीवन. Right. राइट. तो डोंट गो विथ ऐसे फंड्स. इट्स बेटर कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने फंड्स यूटिलाइज करें. मोर ओवर, बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. दिस इज़ वॉट आई थिंक. वाई? बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरो करोगे तो क्या होगा कि जब किसी मतलब हम हमारे पेरेंट्स के या फ्रेंड्स के पैसे ले रहे हैं, रिलेटिव्स के पैसे ले रहे हैं, तो एक शर्म रहती है कि वापस करना है. तो वी पुट मोर एफर्ट्स इनटू आवर वर्क एंड वी मतलब हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो रहता है. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. Yeah. Podcast industry, you mentioned that, though I think that is a lot saturated now. लेकिन what are the other industries that you see through your lens, या फिर ऐसी cities जहाँ पे आपको boom दिख रहा है but people are not being able to capitalize on that? See, I think content is yet to be मतलब come to a saturation. Podcast saturate नहीं हुआ है, content भी saturate नहीं हुआ है. Content creators will come and go, Yeah. podcasters will come and go, but content will stay forever. Right? और अभी जो decade है, this is the decade of information and health. See, I'll tell you, क्या होता है कि हर 20 years में एक change आता है. No, if you talk about 1900s and all, तो पे जिसके पास मशीन हुआ करती थी वो करोड़पति होता था. ठीक है. दिस लेड ऑन टिल 1980s एंड 1990s. उसके बाद जिसके पास कंप्यूटर था, इंटरनेट का .com क्रैश एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, तो उसमें बने हमारा मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स एंड ऑल दोज पीपल. राइट. अभी बात आई है कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन की. जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो किंग होगा. एंड if someone who's into health supplements हो गए, health की information दे रहे हैं, they'll rule. So if someone wants to earn super profits, they should explore these two fields. Yeah, you can carve your own niche. Exactly. So I think by 2035, 2040 you still have that scope कि content में या health में कुछ कर सकते हैं. Should content be looked as a side hustle, या फिर it's a full-time profession? It's a full-time profession. For me, it's a full-time profession, and I believe जो लोग सोचते हैं कि content side hustle होता है, क्या ही करना होता है, एक रील बनानी होती है या एक वीडियो बनाना होता है, they're absolutely wrong. It takes a lot and it consumes a lot of your day, so it's a full-time job. So the people who are doing it as side hustle, do you think they'll be able to manage the workload? Yes, definitely. मतलब it depends how efficient and effective you are. अगर मैं सुबह 9 बजे उठ के जॉब पे जाता हूँ 10 बजे और रात को 8 बजे आता हूँ, तो आई कैन वेक अप एट 5 AM, आई कैन write a script, shoot it, send it for editing, and maybe later post it in the evening. Or maybe if I just want to create content on LinkedIn, I can wake up at 6 o'clock, just utilize my 1 hour to write a LinkedIn post. That is also, I'm also a content creator then. A lot of people are doing it, so it's no bad thing about it. Do you think younger people are more risk averse, या फिर वो लोग they go out? They're not risk averse. Actually, the problem is gratification. सबको बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार उज्जवल के 3 साल में 7 लाख फॉलोअर्स हो गए. बट इफ़ यू एक्चुअली चेक, 7 लाख फॉलोअर्स कलेक्ट करना यूट्यूब पे बैक इन 10 years ago was a very difficult task. अभी क्या कोई एक रील वायरल हो जाती है, आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, बट यूट्यूब पे ग्रो करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो वो आप 7 लाख फॉलोअर्स को मत देखो या ये मत देखो कि कितने क्या हुआ है, आप अपनी मेहनत करो. अगर आप मेहनत करोगे तो आप शायद 1 महीने में 1 million फॉलोअर्स कलेक्ट कर लोगे. इट्स नो बिग डील.
मतलब there's a page Zach Films करके, if you remember, if you know, on Instagram, that guy has reached around 4-5 million followers in 3.5 or 4 months. I think so. I might be wrong, but your work speaks. Right. तो instant gratification के पीछे मत भागो. If you're building something, things take actually time. ठीक है, you learn from your parents and your grandparents how they tell you कि हम यहाँ पे आए थे, हमने बिजनेस सेट किया, तो 10 साल हमको बिजनेस सेट करने में लग गए. आई डोंट थिंक आज की जनरेशन में इतनी पावर है कि वो 10 साल रुक सकते हैं किसी चीज़ को सेटल होने में, या फिर वो 10 साल रुक सकते हैं प्रॉफिट्स को देखने में. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट इज इट इवन अ lucrative बिजनेस सेटअप कि आप 10 साल बाद प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं? I'm not saying that. I'm just saying that कि patience is the key. Maybe 1 year, 2 year at max. उसके बाद it would be a time waste. But there are companies who are doing it. The companies जो भी losses में हैं, and they believe that कि now we'll be profitable. If you look at Ola Electric हो गई, अभी Zomato recently profitable हुई है, but Zomato has been running since 2010. तो उसको तो 14 years हो गए, right? But they're still hopeful. तो if you want to create something big, जैसे क्या होता है, गूगल को बोलते हैं Google is a mountain. You can climb it, but you cannot move it. Right, so if you're building something like that, obviously things will take time. Right. But in situations, people, I feel that if you put your money in, there's a lot of hope also involved. So, for people who don't know anything about commerce or business in general, what are some good content resources that you would suggest? कि ये पढ़ो या फिर इन लोगों से सीखो. What are some good business setups that you would like to analyze? So I always advise my followers or anyone that start reading the Economic Times newspaper. बिकॉज वहीं से आपकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स सब कुछ वहीं से आता है, वहीं बेस ही पूरा वहाँ पर है. तो क्या होगा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी ने अगर इकोनॉमिक टाइम्स उठाया, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको 2 महीने तो समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है. तो व्हाट दे नीड टू डू इज कि पेपर उठाया, सेट विद अ पेन एंड अंडरलाइन ऑल दोज वर्ड्स व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड. राइट, उसको हमने उसके मीनिंग लिख लिया, मीनिंग पढ़ के फिर एक बार वापस से हमने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा. व्हेन यू गो थ्रू इट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. आई गारंटी बाय 6 months, 6 महीने में आपको पूरा पेपर समझ में आने लग जाएगा. एंड दैट्स द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ. इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर आई थिंक सिर्फ 5-7 रुपये का आता है. दैट्स हार्डली 350 रुपीज़. इन्वेस्टिंग 350 रुपीज़ अ मंथ. इससे सस्ती एजुकेशन आपको कहाँ मिलेगी? Very true. Yeah. And there's a lot of budget news going around. तो हमारी एज वाले लोगों को what are the pointers that we should particularly focus on in a budget? Because when you look at it from a whole, it's slightly intimidating also. You don't understand those big numbers. ओके, सो आई थिंक बजट हमसे पूछ के नहीं बनता है, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से पूछ के बनता है. सो वी डोंट हैव अ लॉट फॉर अस इन स्टोर इन द बजट. बट जो अगर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पे लाए कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इनकम टैक्स. अगर मेरी इनकम आज 10 लाख रुपीज़ है, तो आई शुड एटलीस्ट नो कि हाउ मच टैक्स शुड विल आई बी पेइंग इन द नेक्स्ट ईयर. इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस सबसे खर्चा करें या उस सबसे हम पैसे बचाएं या वॉट एवर थिंग्स. प्लस wherever we are putting our money, like we are investing or fixed deposits, तो वहाँ से जो रिटर्न्स आ रहा है वहाँ से मुझे कितना टैक्स लगेगा. राइट, तो अभी टैक्स रेट्स हैव चेंज्ड. पहले क्या था कि 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म पे देयर वाज नो टैक्स. नाउ द लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.25 lakhs. तो यू शुड नो दैट. राइट, तो अगर आप लॉन्ग टर्म आ गए हो, आपने 12 आपको इन्वेस्ट के 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं एंड योर गेन्स आर बिलो 1.25 lakhs, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेल इट एंड यू कैन बाय इट अगेन बिकॉज यू सोल्ड इट फॉर लेस दैन द थ्रेशोल्ड लिमिट. तो इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स बचाना. तो इतना तो थोड़ा यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. पूरा बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि समृद्धि योजना में क्या हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है. बिकॉज हाँ, दीज थिंग्स डोंट कंसर्न अस. राइट, बट या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उससे वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई घर बना रहा है तो दे शुड नो कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सोलर्स के लिए. तो कोई आपको चूना नहीं लगा दे वैसा. अच्छा, घर खरीदने में भी और रेंट करने में बहुत डिबेट चलती है. और इसके साथ साथ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना. जैसे अगर आप कार एक लग्जरी जो पहले थी अब आई थिंक एक नेसेसिटी है, तो बट लोग फिर भी अब थोड़ा सोच रहे हैं कि इसमें खर्चा करें या ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द वैल्यू इज गेटिंग डिक्रीज्ड. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I believe own a house instead of renting it, because आप let's say for example you spend 30 years in a rented house. आपने 30 सालों में 1 करोड़ का रेंट दिया फॉर एग्जाम्पल. राइट, व्हाट डिड यू गेट आफ्टर 30 years? अगर 30 साल बाद भी आपके लैंडलॉर्ड ने आपको बोल दिया कि भाई निकल जाओ, डोंट हैव अ प्लेस टू गो,
Instead, what you can do is कि with that amount of money you can, मतलब 30,000 अगर आप दे सकते हो रेंट फॉर एग्जाम्पल, तो वाई नॉट गेट अ लोन जिस पर 30,000 की EMI बनती है. Okay. एक टाइम पे आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, राइट, बट आपके पास एक घर तो होगा. कल को आंधी तूफान या कुछ भी आ जाए, नो बडी कैन टेल यू टू मूव आउट. True. तो आई ऑलवेज बिलीव कि घर इज़ अ बेटर चॉइस ऑलवेज दैन रेंटिंग. बट अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए घर को रेंट पे लेके एट द एज ऑफ 25. बिकॉज एट दिस एज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. लाइक आई टोल्ड यू कि हर चीज़ का ना एक टाइमलाइन होती है. आप 30 तक इंश्योरेंस की टेंशन मत लो, टर्म इंश्योरेंस की. 30 के बाद व्हेन यू स्टार्ट यू नो with a family, then worry about getting a home for yourself, because people don't realize, but they have plenty of time. So that is my take. तो एक ट्रेंड जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि पहले लोग EMI कार्स या ऐसे बड़ी चीज़ों के लिए उठाते थे, बट अब लोग फ़ोन्स आईफोन लेने के लिए भी EMI से ले रहे हैं. तो इसका कुछ नेगेटिव वो है इफेक्ट? Obviously you're paying more interest. There's no thing as zero cost EMI, if you know it. There's nothing. तो क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने बजाज के साथ एक टाइप कर लिया कि 60,000 का आईफोन है, आप इसको 60,000 को नो कॉस्ट EMI पे बिकवा दो. जैसी सेल होगी आप अपना कट रख लेना और हमको लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 55,000 दे देना, तो 5,000 बजाज का कट हो गया, राइट. इफ़ यू गो एंड बाय द सेम आईफोन एट अ डिफरेंट स्टोर लाइक अ लोकल स्टोर, यू विल गेट इट फॉर 55,000 रुपीज़, राइट. और अगर आप इंस्पायर से भी ले रहे हो तो वो इंस्पायर का फ़ायदा ये है कि आपने नो कॉस्ट मतलब नहीं करवाया. सो पीपल मतलब लोग उसके ट्रैप में फंस गए हैं कि सिर्फ 2,000 रुपये की EMI में वी कैन अफोर्ड एंड ओन एन आईफोन. तो आई थिंक it's wrong, and our fathers and grandparents would haven't done it कि 60,000 rupees का फ़ोन ही वो चला रहे हैं, and it's so easy to even buy a phone worth 1 lakh rupees in today's time. Do you think their habits were much better than ours? Yeah, obviously 100%, because I always look up to my parents and grandparents to see कि what they used to follow. मेरे पापा ने और मेरे दादी ने बहुत frugal lifestyle जी है, and I try to walk on those steps, because at the end when I saw that they have created so much wealth just by sacrificing a lot of things, तो वो समझ में आता है कि इतना मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतने सैक्रिफाइस कर दिया कि कुछ किया ही नहीं लाइफ में. दे नेवर टुक अ लोन. मतलब आप सोचो मेरे दादाजी ही डाइड एट द एज ऑफ 82 ईयर्स, उन्होंने आज तक लोन नहीं लिया. मेरे पापा ने आज तक लोन नहीं लिया. एंड आई कम एंड आई गेट अ लोन फॉर माई कार फॉर एग्जाम्पल. तो वो पूरी एक स्ट्रीक टूट गई. बट you look at their life and look what they have created by not taking a loan for themselves. उनका तो एक ही फंडा था कि अगर कैश है तो खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे. और आज क्या करते हैं, कैश हो या नहीं हो, अरे लोन तो मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग. इट्स रॉन्ग. सो इफ यू बाइंग एन आईफोन टू शूट कंटेंट, दैट्स राइट. फॉर जस्ट बाइंग एन आईफोन टू शो ऑफ पीपल, इट्स नॉट राइट. Right, fair enough. Okay, Ujjwal, we are coming to the end of it, and that's why I want to ask this one patent question, which is ki, since our show is the y-axis, after having worked for so long, there must be this one why in the finance sector that you've still not been able to decode. कि यार लोग ऐसा क्यों करते हैं? So, is there anything that comes to your mind with that? Okay, that's a tough question. I have to think. Why are people trying to impress others? Right. तो वो मुझे उस वाई का समझ नहीं आया, बिकॉज आई डोंट सी माई सेल्फ फॉलोइंग इन टू दैट कैटेगरी. मैं शायद था बहुत कम टाइम के लिए, बट सिंस आई एम आउट ऑफ इट, आई थिंक आई एट मेरा मेंटल पीस बहुत अच्छा है मतलब उस चीज़ को लेके, बिकॉज आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर मैंने सीके की टी शर्ट नहीं पहनी तो मुझे पार्टी में कैसा लगेगा, या व्हाट वुड पीपल थिंक ऑफ मी. आई इंस्टेड ऑफ चेजिंग ब्रांड्स, become a brand, I believe. Okay, right. तो There will be a lot of defenders to this opinion क्योंकि लोग काफ़ी ब्रांड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. हाँ, see, brand things are very good. मतलब if you have the money, you should go for it. But दूसरों को impress करने के लिए, if you're doing it, then I believe it's not right. Just one question that popped out randomly, which is what's your lifestyle like? Where do you invest, and what are things like on a regular basis that you make conscious efforts to working towards? Okay, so where I have to present myself, I make sure that I present myself as a clean person.
मैं सब कुछ पहनूंगा अच्छे से, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. आई चूज ब्रांड्स, गुड ब्रांड्स, बिकॉज आई चूज गुड परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग. तो दैट इज़ वेयर आई इन्वेस्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कंफर्ट इज़ ऑल्सो वन थिंग, कि कंफर्ट में मैं बहुत इन्वेस्ट करता हूँ. सो या, इफ यू टॉक अबाउट ईटिंग आउट, little less outgoing, इतना भी नहीं, maybe once a week or twice in a fortnight, or once in a fortnight. Uh, Apart from that, yeah, I mean, I can barely survive with once I've purchased one thing, I can use it for 3-4 years, so it's quite easy for me. That's good. Thank you so much, Ujjwal, for coming here, giving your time. And I'm sure there's a lot of people that who have actually taken lessons out of this conversation, and I'm definitely one of them. Yeah, see you around and stay connected. Thank you Thank you. so much, Prince. Thank you.